rate of change of linear momentum. F is equal F to is equal to ma. no, F is equal to ma is not in Newton's second law. वो बचपन में हुआ करता था. F is equal to delta p by delta t. That is the rate of change of linear momentum. F is equal to ma is only one special example or case of Newton's second law of motion. First law is law of inertia. तीन तरह के थे law of inertia, inertia of rest. कोई body rest में है तो rest में रहेगी. If a body is in motion, it will continue to be in a state of motion. And third is inertia of direction. If a body is in moving in one particular direction, it will continue to be in same direction. Right? तीनों inertia mass पे depend करते हैं at directly proportional to mass. Inertia is directly proportional to mass. But it is not equal to mass. Inertia की कोई unit नहीं होती. Inertia is a property. Measure करने का तरीका है mass, but it is not equal to mass. Why it is called inertial? Okay. Second is first law gives the definition of force. Why there is a force required? Force is required when we are trying to change the state of motion. The state of motion कैसे represent करते हैं? The physical quantity which is used to represent the motion is linear momentum. Linear momentum is product of mass so into velocity. Velocity we use for the motion kinematics, but that velocity variable is not the correct example or correct method to understand the motion. Same motion to generate the same motion for a big size body, we require large amount of force. So second law gives that quantitative measure of force. कितना हमें force लगाना है if we are trying to change the state of motion, means we are trying to change the momentum, and force is equal to rate of change of linear momentum delta p by delta t. ओके डेल्टा पी जब हम एवरेज किसी टाइम डेल्टा डी में कैलकुलेट करेंगे एंड इफ इट इज फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम it will be dp by dt, which is instantaneous force. F is equal to ma is not the Newton's second law. If you have to write somewhere Newton's second law, it is not F is equal to ma. F is equal to ma इसका एक special case था d by dt of mass into velocity. ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए I'm just going little fast. पूछना क्लियर हो तो पूछ लो. Velocity is used in kinematics. हम पढ़ रहे हैं dynamics. Dynamics का मतलब हमें वो equations भी लिखनी है जिससे motion govern हो. So we have to write the forces acting on a body and then we can predict their acceleration. First law inertia qualitative property represent करता है, उसको हम calculate नहीं कर सकते. This is just a property which denotes why a force is required. To change the state of motion, to change the momentum, हमें force चाहिए, कितना force चाहिए, that is given by the second law. F is equal to delta p by delta t या फिर dp by dt. अगर mass constant है during the journey, then it is mass into rate of change of velocity, that is F is equal to ma. And if it is required, if suppose in any journey the velocity is constant and mass is variable, we took some example जैसे टैंकर जिसका पीछे टैप ओपन होता है, पानी गिरता रहता है, that is a variable mass system. So v into dm by dt, this is another force formula. So momentum किसी भी तरीके से change हो, चाहे velocity की वजह से या mass की वजह से या दोनों की वजह से, there will be some force acting. ठीक है, till this point I think we did last class. अभी हमें analysis कर रहे थे first law, second law, third law की. We use some specific point like second law is the real law, क्योंकि second law से हम first law derive कर लेते हैं. ठीक है, logic क्या था उसका? अगर किसी body में force नहीं है, there is no force, which was the condition of first law. If there is no force, that means change in momentum is zero. Change in momentum is zero means final state of motion will be same as initial state of motion because their momentum is same. Which is the first law statement. If there is no force acting on a body, the state of motion will remain same जब तक कि हम कोई बाहर से force नहीं apply करते. Right? Newton's second law gives the first law, hence second law is called the real law, and second law is the quantitative measure of the force that we can calculate the force.
एक छोटा सा एग्जांपल किया था हमने, एक गन से बहुत सारी बुलेट अगर फायर कर रहे हैं, कितना फोर्स गन पे लगेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय द एवरेज फोर्स फॉर्मूला, टोटल change in momentum divided by total time taken in a time span of 1 minute, right? Okay. Arnav, Sharma, Yes, are sir. you there? Arnav, Yes, sir. अच्छा आपके एग्जाम में लॉज ऑफ मोशन पूरा आ रहा है शायद, एंड वर्क एनर्जी, सो यू हैव टू गो थ्रू द वीडियोस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ये सारी क्लास अटेंड किया आपने? सर रिकॉर्डिंग देखिए। रिकॉर्डिंग देखिए, तो अगर आपको भी अलग से कुछ डाउट क्लास चाहिए हो तो बता देना, कि मैंने एक डिटेल मंगाई थी, वैसे अभी भेजी नहीं कुछ लोगों ने। ऑल दी सिलेबस एंड दी टेस्ट डेट आपको तो शायद आ गया, 6 को है ना? यू हैव एग्जाम ऑन 6, Yes, sir. राइट? सो वी कैन हैव 1 or 2 क्लासेस इन बिटवीन फॉर योर डाउट्स इंडिविजुअली सेपरेटली। सर यस, सर फर्स्ट चैप्टर में क्या आ सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज में? फर्स्ट मींस फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड डायमेंशन। यस सर। सर फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में वो आ सकता है, कौन से एक्सचेंज पार्टिकल थे 4 फंडामेंटल में, विच ऑफ द force is the strongest force out of 4 fundamental forces, range of forces। उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, मतलब मोस्टली इसमें वही वाला पार्ट है which is finding the 4 fundamental forces की properties। so Newton's second law of motion is, हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज दैट इट इज अ लोकल रिलेशन। लोकल का मतलब जिस टाइम का फोर्स है उसी टाइम का एक्सेलरेशन ही बताएगा। अगर टाइम के साथ साथ फोर्स चेंज हो रहा है देन एक्सेलरेशन विल बी चेंजिंग। सेकंड प्रॉपर्टी वाज दैट इट इज, बहुत सारे लिखे थे हमने, कुछ 3-4 पॉइंट। हाँ, इट इज अ वेक्टर लॉ, इट इज अ वेक्टर लॉ एंड एफ हैज टू बी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और नेक्स्ट, ओनली फॉर द पार्टिकल्स। न्यूटन की सारी फिजिक्स जो न्यूटन ने बनाई थी, साइज कितना भी बड़ा हो, हम एज्यूम करेंगे एक्सेलरेशन किसका है, दिस एक्सेलरेशन इज ऑफ 1 पॉइंट, जहां पर हम सारा का सारा मास एज्यूम कर लेंगे। द एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड इज नॉट ऑफ द होल बॉडी, इट इज ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द टोटल मास इज assumed to be present। इट इज एप्लीकेबल इन इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन से थे? जो रेस्ट में रहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम विच आर एक्सेलरेटेड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। अभी हम अर्थ पे खड़े हैं, हमारे लिए अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, विच इज अपीयरिंग टू बी एट रेस्ट, इसलिए हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम कर रहे हैं। इफ वी सिट इन द कार, कार इज मूविंग, कार से देखेंगे तो बाहर अर्थ मूव करते हुए लगती है पीछे की तरफ, सो देन इट बिकम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में फोर्स नहीं फील होगा। अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या थे? जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं मोशन को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच द होल सिस्टम और मोशन इज ऑब्जर्व्ड। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चल रही है तो आपको कोई फोर्स फील नहीं होगा, मींस देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का फील होगा या तो कार को एक्सेलरेट करें या कार में सडनली ब्रेक लगना, राइट? अगर एक्सेलरेट करते हैं तो पीछे की तरफ, ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ, then only this Newton's second law will come into play that there has been some additional force। समझ आ रहा है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कार या ट्रेन चल रही है और आप अंदर बैठे हुए हैं तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपकी कार चल रही है, मतलब कार तो चलो फिर भी दिखती है। if you are sitting in a train with no window outside, अगर बाहर देखने को ना मिले और आप अंदर बैठे हुए ट्रेन में और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो पता नहीं चलेगा कि चल रही है कि नहीं,
राइट, समझ आ रहा है ना? सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, वो दोनों केस में, चाहे वो सिस्टम रेस्ट में हो, चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ओनली व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन, तब आपको उसमें फोर्स फील होगा, एंड देन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी दैट फ्रेम इन विच या तो एक्सेलरेशन हो रहा हो या फिर रिटार्डेशन हो रहा हो, तो आपको एक एडिशनल फोर्स फील होता है एवरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके वी कैन राइट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो पॉइंट क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड इन बोथ इनर्शियल एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाते टाइम हमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। वी हैव टू स्पेसिफाई कि हम कौन से फ्रेम में जाके मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। एग्जांपल क्या दिया था मैंने, ट्रेन के अंदर आपका कोई ब्रीफकेस, कोई सूटकेस रखा हुआ है, सम लगेज इज देयर, सम लगेज इज केप्ट। अगर पर्सन के जो अंदर बैठा हुआ पर्सन, इफ यू आस्क हिम, फॉर पर्सन ए दिस लगेज इज at rest. For the person who is outside the train on the earth, the luggage is in motion, right? Suppose even if it is accelerating, train is accelerating. For person A, the luggage is at rest. There is no force for him. According to him, luggage पे कोई force नहीं लग रहा है, इसलिए ना तो वो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है. It is stationary. For the person B, the luggage is accelerating with the same acceleration as that of train. तो जब हम अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं, then we are observing this with respect to an inertial frame of reference. जब हम ट्रेन के अंदर पहुंच गए, then now we are in a non-inertial frame of reference. कि हम तो ऑब्जेक्ट नहीं, हम तो इस फ्रेम में है ना, वी आर इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन, द ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग। रेस्ट में तो ऐसा हमेशा ही रहेगा। इन दिस, इन द फ्रेम ऑफ ट्रेन ऑलवेज ट्रेन अपीयर्स एट रेस्ट। अभी अर्थ रेस्ट में है, हमें लग रही है ना, बिकॉज वी आर इन द सेम फ्रेम। बट अगर हम कहीं अर्थ से बाहर चले जाएंगे तो हमें अर्थ रेस्ट पे नहीं दिखेगी। इट इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग। जिस भी फ्रेम के अंदर हम जाते हैं, जिस भी फ्रेम में जाएंगे, दैट फ्रेम विल ऑलवेज अपीयर टू बी स्टेशनरी। ट्रेन के अंदर ट्रेन रेस्ट में, बस के अंदर बस रेस्ट में, अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ स्टेशनरी, राइट? ओके, एक कुछ ना समझ में तो बता देना कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने से रिलेटेड है और हम कर चुके हैं। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग लिटिल फास्ट टू गिव अ ब्रीफ ऑफ दिस। कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, 1 or 2 ओनली। अ पर्सन इज हैविंग सम गन इन हिज हैंड एंड ही इज फायरिंग द बुलेट। तो उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस बंदूक को संभालने के लिए? हाउ मच फोर्स ही रिक्वायर टू, कुछ ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन। सो नेक्स्ट थोड़े से एग्जांपल करते हैं, देन वी विल जंप टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कशन। अ बॉल इज a ball of mass 2 kg hits a vertical wall with a speed 20 meter per second and bounces back with 15 meter per second. राइट, so हमने किसी बॉल को एक बॉल की तरफ प्रोजेक्ट किया है। The ball was moving with a velocity of 20 meter per second, hits and then bounces back. Collision में थोड़ी सी एनर्जी चली गई उसकी, तो अब इसकी स्पीड कम हो गई है। It bounces back with 15 meter per second. If the ball is in contact, if the ball is in contact for 1 millisecond, find the force exerted by the ball. If ball is in, how beta? 10 to the power minus 3 for 1 millisecond, find the force exerted on the wall, by the wall.
तो ये पूरा एक कुछ प्रीफिक्सेस का टर्म होता है, किलो, हेक्टा, डेसी, डेका, सेंटी, मिली। अच्छा, 70,000 न्यूटन, यू आर टेलिंग द आंसर। ओके, वेरी नाइस। चलो लेट्स ट्राई। सो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स इज ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ये हो गया फॉर्मूला एवरेज ने, क्योंकि ये कुछ टाइम ड्यूरेशन में। दिस इज फॉर सम टाइम ड्यूरेशन। 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल जा रही है and it is coming back with 15 meter per second. V is the final velocity, U is the initial velocity, so U is 20 and V is 15. Kartikeya, what is the final velocity? What is the initial velocity? 20. Time taken is milli. Milli का मतलब हो गया 10 to the power minus 3. Negative लेंगे, क्या लेंगे negative? Direction को, absolutely. Velocity is not 15. Velocity is a vector quantity. अगर हम इसको ले रहे हैं 20 meter per second, which is the positive x direction, then final velocity is opposite in direction. It is minus 15. Right? Velocity is a vector quantity. So when the right side velocity is positive, the left side velocity is negative. It becomes minus 15. That is 2 into minus 35 into 1000 minus 70,000. 1000 को किलो लिख सकते हैं. माइनस इज फॉर द डायरेक्शन. ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया? दिस इज, ये किसका मास लिया है? बॉल का. दिस इज, सो दिस इज फोर्स ऑन द बॉल. ये हमने बॉल पे कैलकुलेट किया है. दिस इज नेगेटिव, यानी बॉल पे फोर्स लग रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मोशन. इट वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट. The force on the ball is in the negative direction. By action reaction pair, the same force will be acting on the wall, but in opposite direction. That will be positive direction. minus 70 kilonewtons from the direction. Minus हमने positive लिया था इसको, u. So ball So opposite. Yes. We have to consider some positive and negative specific axis. Right side is positive, so that force on the wall is positive. ball exerted was positive 70 kilonewtons. That positive means only the direction is towards right. Ball पे force negative का मतलब हो गया it is opposite to the motion, or towards left we can say in this case. Right? Okay, so force is change in momentum upon time taken. ये minus 70. Force on the wall will be same but opposite direction, so it is 70 kilonewton towards right. Right? Okay, next. So ये सारे direct वाले cases में questions हैं. F is equal to delta P by delta D. Delta P is change in momentum, mass into velocity is momentum. Newton's second law statement is delta P by delta D, but इसका एक specific case बन जाता है अगर mass constant हो, F is equal to ma. So next question. Next, हम अभी थोड़े simple वाले कर रहे हैं at the beginning, and then we will see some more typical one. This chapter is the very important for any XYZ exam, school, JEE, NEET, Olympiad. Laws of motion is the backbone. It's like ABCD of the physics. Simple? Understood? Okay. Next question, please write. A bullet of mass 200 gram hits a wooden block
with the speed of 100 meter per second and penetrates up to 20 centimeter in the block. Calculate the resistive force. Calculate the resistive force applied by the block on the bullet. Calculate the resistive force on the bullet. ये कुछ एक तरह से वो बुलेट प्रूफ जैकेट वाला केस है. एक wooden block है which is like a bulletproof jacket kind of thing. There is a bullet which hits or just goes inside with a speed of 100 meter per second. It penetrates up to 20 centimeter and comes to rest. So जो bulletproof window या bulletproof jacket होती है, that is designed by some very hard material by finding its resistive force. कितनी मोटी वो जैकेट होनी चाहिए so that the bullet does not go into the does not pierce and come out from the other side. समझ गए? नहीं. जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसकी थिकनेस कैसे डिसाइड करते हैं? दैट इज एस्बेस्टस मटेरियल. थोड़ा मेटल भी डिफरेंट होता है. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बुलेट, उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे दिस इज गिवन एज 20 मीटर सो दैट इट डज नॉट कम आउट ऑन द अदर साइड. तो कितनी भी स्पीड से बुलेट अंदर जा रही है, बुलेट विल नॉट बी एबल टू कम आउट, अंदर ही रह जाएगी. द पर्सन विल बी अनहार्म्ड. ये उसी का एक बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल है, इक्विवेलेंट वर्जन. देयर इज अ वुडन ब्लॉक. किसी ने गोली चलाई, आप सामने एक बुलेट ब्लॉक लेके खड़े हो, नॉट अ जैकेट. लकड़ी का आपने ब्लॉक था वो सामने कर दिया, राइट. सो बुलेट इज गोइंग इनसाइड बट नॉट कमिंग ऑन द अदर साइड, सो यू विल बी सेफ. लेकिन वो अंदर 20 सेंटीमीटर तक पहुंच गई. अगर आपने 10 सेंटीमीटर तक कर लिया तो नहीं बचोगे, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा. ठीक है, आर पार निकलेगी या पता नहीं. अभी हमें इस मटेरियल का रेजिस्टिव फोर्स, कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स ऑन द बुलेट बाय द ब्लॉक. ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, इसीलिए वुडन का नहीं बनाते हैं. दैट इज अनदर मटेरियल, एस्बेस्टस मिक्स कुछ केवलर सुना होगा शायद. हाँ, उसकी रेजिस्टिव फोर्स पता पड़ जाती है, कैलकुलेट करते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना वो मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइड कर सकता है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितना वो झेल लेता है, कितना उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे. अगर टूट गया पूरा ब्लॉक, निकल के दो पार्ट में ब्रेक हो गया, बीच से ब्रेक हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो अभी हमें यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करना है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम नहीं पता है. यहाँ पे क्या पता है, डिस्टेंस. फिर से बोलो, सही बोला, क्या कह रहे हो? अच्छा, थर्ड इक्वेशन. ओके, नहीं पता नहीं पड़ता मास लगा के कौन बोल रहा है. 3D साउंड आता है. F इज इक्वल टू, अगर हम डेल्टा पी बाई डेल्टा डी यूज करना चाहें तो हमारे पास टाइम नहीं है. ये तो पता है, इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 20 सेंटीमीटर. अज्यूमिंग द मास रिमेन सेम, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू ma. थर्ड इक्वेशन वी कैन अप्लाई फॉर दिस वुडन ब्लॉक. जो भी मटेरियल है, it is providing the retardation. Final velocity is 0, initial velocity is 100 meter per second and the distance covered is 20 centimeter. उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 by 100. विवेक, three equations of motion. 9th में कभी पढ़ा होगा या अभी 11th में पढ़ा होगा. Equation of motion, B is equal to, तो v स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया है. इसके अलावा बताओ बाकी दोनों. पहली इक्वेशन v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square. From this calculate the acceleration. कितना आएगा ये, ज्यादा ही है, 100 स्क्वायर into 100 divided by 40.
Average force exerted on the bullet by the block by this wooden material. Mass is 200 gram. Change into kilogram, 200 by 1000. Acceleration is 100 into 100 into 100 by 40. I think 5000 Newton. Yes. 5000 Newton is the average force that has been exerted by this wooden block. The strength of material will decide how much force it is going to exert. Next question. तो मेरा -5000 आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। नहीं बेटा माइनस ही हम तो रेजिस्टिव वर्ड यूज करें ना यहाँ पे, इट शुड बी नेगेटिव। अगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ए इज रिटार्डेशन, मीन वी आर ऑलरेडी यूजिंग द फैक्ट दैट फोर्स इज अपोजिट। इफ यू वांट टू राइट इन द वेक्टर फॉर्म इट शुड यू शुड Yes, राइट yes, understood. -5000। फोर्स तो माइनस है बट हमने ऑलरेडी ये दिमाग लगा लिया है कि वो रुक रहा है। Since it is slowing down, that means it is a resistive force. If you are using the word resistive force, then you will write 5000 Newton. If you are using the word force, then you should write -5000. Correct? Resistive का मतलब ये है वो opposite to the motion. Next question. So अब हम वो वाले केसेस देखते हैं जिसमें velocity same रहे और mass change होने लग जाए. If mass is either going out of the system or going into the system, mass या तो time के साथ increase हो रहा है या फिर decrease हो रहा है. So in short, it is changing with time. In that case, also momentum changes, and that change in momentum requires force. जैसे रॉकेट propulsion पढ़ा था हमने, रॉकेट में कोई भी रॉकेट हो, दिवाली वाला हो या स्पेस वाला हो, there is some fuel inside, आग लगाते हैं तो it converts in the form of gas and gases start coming out with certain velocity. नीचे से वो निकलता है opposite direction में, it provides the force. So calculate the average force exerted on the pipe. Calculate the force exerted on the pipe. पाइप मतलब वो वाटर वाली पाइप है which delivers 1000 liters of water. 1000 liters of water in 5 minutes with speed of 20 meters per second. ठीक है, कोई पाइप है, बड़ी सी मोटी सी पाइप है, ज्यादा पानी तो हॉर्स पाइप जैसी होती है, ट्यूबवेल वाली जो होती है, ट्यूबवेल देखा है ना, बड़ी मोटी सी पाइप, ऐसे किसी वाटर से इस पाइप से पानी बाहर निकल रहा है एंड इट डिलीवर्स 1000 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस पे क्यों लगेगा? क्योंकि इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर जा रहा है, मास इज डिक्रीजिंग, so water is going out, there will be some force acting on the pipe. जैसे जो गार्डने वाली पाइप भी होती है, अगर ज्यादा स्पीड से कर दो तो वो डांस करने लगती है ना, उसको पकड़ना पड़ता है। देखा कभी नहीं? सर स्पीड क्या है? स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। उसका रीजन ये है कि जैसे पानी उससे बाहर निकलता है उसके ऊपर फोर्स लगता है, आगे की तरफ वेलोसिटी, पीछे की तरफ वो, and then because of friction तो उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, only then it will deliver some water, right? So इसके बाहर निकलने से कितना फोर्स लग रहा है इस पाइप पे? कॉमन सेंस से पीछे ही लगेगा, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। जितनी फोर्स से बाहर लिक्विड को थ्रो कर रहे हैं, equal opposite force will be acting on the pipe. Now that force will require this second formula which was P into delta m by delta t, क्योंकि जब भी पानी निकलता है each particle of water is coming out with the same speed. तो V तो चेंज हो नहीं रहा है,
मास लेकिन गिवन था यहाँ पे 1000 लीटर, 1000 लीटर इज 1 kg, 1000 लीटर इज 1 kg, समझ करो यार, 1000 लीटर इन 5 मिनट, दिस इज द रेट ऑफ। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ऋषित? 100 1000 वाट, 1000 वाट वाटर की डेंसिटी, 1 वाट यूनिट, यूनिट बताओगे कि तभी वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर डेंसिटी? केजी पर मीटर क्यूब, mass per unit volume. What is the density of water? Density of water? 1000? 1 or 1000? 1 gram per centimeter cube. Its water is considered to be the base for all the liquids, so water ki density is assumed to be 1. Centimeter cube is also called ml, milliliter. 1 milliliter is 1 cc. cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। जब केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करोगे तब तो ये 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम इज 10 to the power minus 3 kg एंड सेंटीमीटर इज 10 to the power minus 2, उसका पावर 3 करोगे तो -6। Sir, you are on mute. यस, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर। जब हमें केजी या मीटर क्यूब में गिवन होता है, बट हियर इट इज गिवन इन लीटर। जब इसको हम लीटर में चेंज करें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बिकम 1 ग्राम पर ml। इसको कर लेते हैं केजी में चेंज, 1 मिलीलीटर इज, मिली का मतलब -3, 1 मिलीलीटर इज 10 to the power -3 लीटर। दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो 1 ग्राम पर मिलीलीटर या फिर 1 केजी पर लीटर, दैट इज द डेंसिटी। तो 0.99 समथिंग होते हैं 4 डिग्री पे, ओनली एट 4 डिग्री इट विल बी सेम, बट वी कैन अज्यूम। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेल्टा एम बाई डेल्टा डी। स्पीड इज 20, मास 1000 लीटर है, बट 1000 लीटर ऑल्सो मीन्स 1000 केजी, दिस इज 1000 केजी एंड टाइम टेकन इज 5 मिनट। मिनट को चेंज कर लेंगे हम स्टैंडर्ड यूनिट में, विच इज सेकेंड, सो इट विल बी v into dm by dt। विवेक, मास में पता नहीं पड़ता आवाज कहाँ से आई, लेकिन ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है ना? ऐसे पानी बाहर निकले, कुछ भी बाहर निकले, एनीथिंग व्हिच चेंजेस फ्रॉम दिस सिस्टम, सो इट विल बी, कितना आ रहा है, 66 66.67 Newton. This is the force on the pipe opposite to the water flow, opposite to the liquid flow. ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन है फ्रॉम द एसएल ऑन पेज नंबर 5.9 दैट यू विल डू इन होमवर्क। अभी हम आगे बढ़ लेते हैं फॉर द थर्ड। जैसे इसी का एक आइडेंटिकल वर्जन है बलून,
बलून के अंदर कुछ हवा भरी हुई है, उसको पकड़ के रखा है. When you open it, the air comes out in a time span of 2.5 seconds. The balloon shrinks completely in 5 seconds. Calculate the average force. Same delta m जितना मास था बाहर निकल गया. Right? Opposite भी होता है. Opposite मतलब जैसे like suppose कोई कार्ट है, कोई ओपन गाड़ी है. It is kept on a perfectly smooth surface. तो जैसे रेन आती है, with the help of rain, इसके अंदर मास बढ़ता जाएगा और वो चलने लग जाएगी. Because there will be force. If it is on a perfectly smooth surface, ice surface. Right? So a mass added into this system or mass going out of the system. In both the cases, if there is a change, केवल direction का फर्क होगा. Force इस पे कहाँ से आया? Because of momentum changing. रेन का नहीं, इस सिस्टम का मोमेंटम. सिस्टम मतलब गाड़ी, कार्ट. उसका मास चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स गोइंग इन एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फोर्स. समझ गए? क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पूछो फिर से एक्सप्लेन करो. जो कार्ट है वो खड़ी हुई है पहले से, ठीक है. इट हैज सम मोमेंटम बट दैट मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग. दैट मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग. मास जो भी मोमेंटम, इट इज जीरो. When an open cart is in the ground और वो रेन कलेक्ट करते जा रहे हैं टाइम के साथ. वो तो रेन तो जोड़ो, अभी तो रेन को देख ही रहे हैं ना, हम सिर्फ कार्ट को देख रहे हैं. आप केवल कार्ट को देख रहे हैं. सिस्टम कार्ट का जो मास था वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें वाटर कलेक्ट होता जा रहा है. राइट? हमने तो धक्का दिया नहीं. वी डिडंट गिव एनी पुश. वी डिडंट स्टार्ट द कार्ट इंजन. वो क्यों चल रही है? बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स हिटिंग और उसके अंदर का मास बढ़ा रहा है. रेन ड्रॉप इज हिटिंग ऑलवेज विद द सेम स्पीड. तो वी तो चेंज नहीं हो रहा है. चेंज क्या हो रहा है? मास. तो नहीं चलेगी. तो फिर नॉर्मलेशन बढ़ेगा. केवल केवल नीचे जो नॉर्मलेशन लग रहा है केवल उसकी वैल्यू चेंज होगी. रेन ड्रॉप क्या, इसका और छोटा सा अच्छा सा परफेक्ट एग्जांपल, जो चेन होती है. चेन, कोई भी चेन, XYZ, जानवर बांधने वाली कहीं पर भी, यानी बिग चेन. This is also another example of variable mass system. इसको पकड़ के अगर हम ऊपर ले जा रहे हैं, we are trying to lift this chain. The part of this chain which is in motion is changing. ये हम J वाले में लेवल पे करेंगे अलग से. Right? जब हमने उठाना स्टार्ट किया था तो केवल पहली लिंक उठी थी, फिर धीरे 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 more mass is changing. So this system which is in motion, जिसको मूव करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, वो चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है. समझ गया ना? सिस्टम समझिए क्या है. चेन. चेन मतलब दो तरह की होती है. साइकिल वाली चेन होती है. साइकिल वाली चेन पूरी एक साथ कनेक्टेड होती है. अगर एक एंड पे उठाओगे तो पूरी चेन एक साथ मूव कर जाएगी. वो दो डबल लिंक वाली होती है. ये वो वाली है, भैंस वाली, जानवरों वाली, जिसमें ऐसे एक लिंक के बाद दूसरी लिंक, उसके बाद तीसरी लिंक. समझ गया ना किसकी बात है? मतलब जो चेन पहनते हैं मोस्टली वो तो वो साइकिल वाली टाइप होती है. एक एंड को टच करोगे तो पूरी चेन उठ जाएगी. दिस इज लिंक बाय लिंक. पहले एक लिंक जाएगा, फिर वो नीचे वाले लिंक को टच करेगा, ओनली देन इट विल लिफ्ट, फिर लिफ्ट करेगा. सो दैट इज द केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम. अभी हम इसकी बात कर रहे हैं. इसमें सपोज, चलो बात हो गई तो उसको भी लिख के लेते हैं. दिस इज अ यूनिफॉर्म चेन. Uniform chain of mass per unit length lambda. Another example से आप इसको लिख लो. Next example is there is a uniform chain. इसकी mass per unit length है lambda. अगर ये सपोज ऐसा सिस्टम नहीं होता इसमें कि मास ऐड हो रहा है, तो जितना इसका वेट फिर उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर लिफ्ट करने के लिए.
अभी क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स मास ऑल्सो चेंजिंग विद सिस्टम. सपोज ये v वेलोसिटी से हम इसको ऊपर लेते जा रहे हैं. If we are lifting it with a constant velocity of v. Constant velocity ले जाने के लिए फोर्स हमें उतना ही लगाना पड़ता है जितना नीचे फोर्स है. That would have been only equal to mg अगर इस सिस्टम का मास कांस्टेंट होता. राइट, ये समझ में आ रहा है? नहीं, फिर से चेन है. इनिशियली इट वाज होल चेन lying on this table. We started applying the force F और हम इसको धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहे हैं. राइट, और हमें कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ के इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है. देयर इज नो अदर एक्सीलरेशन. ठीक है. सो इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन मींस नेट फोर्स हैज टू बी जीरो. जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना का नीचे वेट. बस हमें F को mg के इक्वल लगाना चाहिए था, लेकिन देयर इज वन एक्स्ट्रा फोर्स विल बी एडेड which is because of this v into dm by dt. There is another force added क्योंकि इस सिस्टम का मास भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है. वो इनिशियल में कुछ नहीं था और धीरे धीरे विद टाइम मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द चेन इज इन मोशन. किसी टाइम पे सिर्फ इतना, फिर और हम ऊपर लिफ्ट करते जा रहे हैं. देन द चेन मास इज चेंजिंग विद टाइम. If there is a change of mass, there will be an additional force coming into the system. So इसको ऊपर lift करने के लिए at this time, suppose this is time t, जो हमें constant velocity से force अगर ले जाना है, एक तो इसके weight के बराबर और plus there will be one extra force which is coming because of variable mass of the system. इस सिस्टम में क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, मास ऊपर ऐड हो रहा है, तो उसके अपोजिट. जैसे रॉकेट से गैस बाहर निकलती है तो फोर्स पीछे. इसमें सिस्टम में ऊपर मास ऐड हो रहा है तो फोर्स विल बी डाउनवर्ड. वी आर एडिंग दैट फोर्स. वेट में ये फोर्स ऐड हो जाएगा. So, ऊपर लिफ्ट करते टाइम वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स है ड्यू टू द चेंज इन मास. समझ गए? जब ये नीचे रख रहे होंगे तो अपोजिट तभी हो सकता है ना, ऊपर से चेन लाके धीरे धीरे रख दें. यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे सिचुएशन थी कि सारी की सारी चेन टेबल पे रखी हुई है और हम उठा रहे हैं. अपोजिट रिवर्स केसेस at time t is equal to 0 the chain is one end of chain is just touching the table. और फिर आप उसको टाइम के साथ रखते जा रहे हो. Some part is kept on this table. तो वेलोसिटी किधर है? नीचे. वेट से ज्यादा फोर्स लगाना है. मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर ये वेरिएबल मास सिस्टम है, आप उसको उठा रहे हो तो जितना पार्ट हवा में है उसके वेट से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना है. और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्पीड से उठा रहे हो. ज्यादा स्पीड से उठाओगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. राइट? नहीं, समझ गए? डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? उस वेलोसिटी पे जिस वेलोसिटी से या तो मास बाहर निकल रहा हो या उस सिस्टम के अंदर आ रहा हो. इस सिस्टम के अंदर आ रहा है मास तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ. उसका केवल जो एडिशनल मास ऐड हो रहा है उसका वेट है तो mg में इंक्लूड हो जाएगा. नहीं होगा ना. दिस mg इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वेट की वजह से. ये जो v dm by dt वो तो इस लिंक यहाँ पे जो ये थी पहले रेस्ट पे थी वो इसके अंदर आ गई. जैसे वो एकदम सडन इट कम सडन इन मोशन बिकॉज ऑफ दैट सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट पार्ट देयर विल बी अ फोर्स. उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसका मास चेंज हो रहा है. इसके हर एक पार्ट की वेलोसिटी सेम v because we are lifting the chain with constant velocity. समझ गए? This force value is changing by the way क्योंकि weight change हो रहा है. weight change हो जाएगा mg धीरे धीरे.
स्मॉल m इज द मास ऑफ, ओके मैं पूरा लिख ही देता हूँ. Find the force required to lift the chain with constant velocity v. हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ रहे हैं जिसमें वेरिएबल मास होगा टाइम के साथ. दिस सिस्टम मास इनिशियली कुछ नहीं था. दिस मास इज इंक्रीजिंग विद टाइम, so it is satisfying the criteria of being variable mass system. Constant velocity से move lift करने के लिए net force has to be zero. जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए. और ये कहानी है टाइम t की, जिस टाइम पर y is in the air, right? यूनिट लेंथ का मास कितना है? लैम्डा. mass per unit length is lambda. Per unit length as in like 1 meter. 1 meter. How much is this length? Y. So इसका mass कितना हुआ? Lambda y. So y is changing. जैसे तो y change हो जाएगा वैसे mass change होगा. At this time lambda into y into g plus v. y increase हो रहा है ना? y तो पहले 0 था, कुछ था ही नहीं. Y is changing with time. And this dm by dt will be d by dt of lambda into y. इस टाइम पे इसमें मास का तो चेंज हो रहा है, पूरा तो रेस्ट में. चेंज क्या हो रहा है? dm by dt वो सबके लिए कांस्टेंट ही आ जाएगा, डोंट वरी. lambda y into g, v constant, lambda constant into dy by dt. And dy by dt becomes velocity, rate of change. मैंने इसीलिए एग्जांपल अभी नहीं लिया था, बट आराम से टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. हम इस सिस्टम को दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं. उस पार्ट को जो हवा में, या उस पार्ट को देखें जो कि टेबल पे रखा हुआ है. दोनों के लिए कहानी सिमिलर है, सेम नहीं है बट सिमिलर है. एक का मास ऐड हो रहा है, दूसरे का मास कम हो रहा है, राइट? द पार्ट ऑफ द चेन विच इज इन एयर, उसका मास तो बढ़ता ही जाएगा बिकॉज लेंथ बढ़ती जा रही है. Because that mass is changing, there is one extra force component because of variable mass system. Correct? अब ये dm by dt डिपेंड नहीं करता कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ कैलकुलेट करें, हर जगह पे सेम ही है बिकॉज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर. टाइम t पर अब हमने देखना था. दिस इक्वेशन इज फॉर टाइम t. उस टाइम पे मास कितना है सिस्टम का? दिस चेन व्हिच इज इन एयर इज लैम्डा इनटू y. We substituted here. उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज कितना है? dm by dt. Again we substituted lambda into y. उस इंस्टेंट पे यहाँ पे सेम है, वो अलग बात है, बट अगर हमें यहाँ फोर्स निकालना है तो हम इसी टाइम पे देखेंगे सिस्टम में क्या चेंज, राइट? इफ दिस वेलोसिटी वुड हैव बीन चेंजिंग तो ये dm by dt की वैल्यू हर जगह पे अलग अलग होती. ओनली इन दिस केस मास इज dm डेल्टा अपॉन y. लैम्डा इज कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया. dy by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट which is velocity. It become velocity, so v into v become lambda v square. बढ़े जा रहा है, but since it is moving with a constant rate in this particular case, but अगर आप ये बोलो कि dm by dt is always constant, that is not necessary. वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे. तो जनरल फॉर्मूला तो ये है, F is equal to lambda into y into g. ये ग्रेविटी वेट की वजह से, प्लस लैम्डा इंटू वी स्क्वायर, ये है बिकॉज ऑफ एडिशनल वेट और एडिशनल मास गोइंग इनटू द सिस्टम और गोइंग अवे फ्रॉम द सिस्टम. इसकी वजह से फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है. उस सिस्टम में खड़े हो जाओ जिस सिस्टम में वो जा रहा है. यू गो इन दिस सिस्टम, सिस्टम में कुछ आ रहा है ना, जिस डायरेक्शन में सिस्टम में मास ऐड होता है उसके अपोजिट. For us, the system is the chain. So रॉकेट वाला केस ले लो. अगर ये रॉकेट है, रॉकेट से धुआं बाहर निकलता है तो फोर्स ऊपर लगता है.
अगर रॉकेट में अंदर कुछ आ रहा है तो फोर्स नीचे लगेगा। Opposite to the relative motion, relative velocity with which mass enter or leave the system. Keith, you understood this example? वो समझ लेते हैं। dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। वो किसी भी टाइम पर हमें निकालना हो, जिस टाइम पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम का मास लेंगे। टाइम t पे y इज द लेंथ विच इज मूविंग, विच इज इन द मोशन। यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो y लेंथ का मास लैम्डा इंटू y। हाँ मतलब टाइम t पे वो तो चेंज हो रहा है ना, हम तो कॉन्टिन्यूसली उठाते ही जा रहे हैं। एक इंस्टेंट पे देखना है। एट दैट इंस्टेंट y पोर्शन इज इन द एयर, y का मास हो गया लैम्डा y। इस टाइम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है लैम्डा इनटू dy by dt। dy by dt is velocity, rate of change of displacement is velocity। So lambda by the value अभी तो ये फोर्स चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट आ गया, y चेंज हो रहा है। दिस पोर्शन इज कांस्टेंट, टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, this is constant, this will be changing because of y changing obviously। yeah, I didn't say that force is constant, velocity is constant। इस velocity को constant रखने के लिए आपको force की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। किसी इंस्टेंट पे कितना फोर्स लगाना है वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे y की कितनी वैल्यू। करेक्ट, इसलिए वो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है at time t calculate the required the force at time t। this force is not same for all the instants। ओके ये वैसे अलग के लिए एक अलग केस में रखा हुआ था मैंने अलग से सेपरेटली करने के लिए वेरिएबल मास सिस्टम। सो वी विल सी इट सेपरेटली व्हेन वी डू द जेईई एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम्स। अभी के लिए समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जय माता दी, छोड़ देते हैं। वी विल कम बैक टू दिस। वेरिएबल मास सिस्टम के ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ में कुछ कुछ डिस्कस करना था, समथिंग इम्पोर्टेंट which is written wrong in most of the books। बेटा ये समझ में आया कुछ हरसिमरत? दिस एग्जांपल यस सर, कॉम्प्रिहेंड कर रहा हूँ अभी। प्रिंट कर रहे हो? हाँ, चेन तो है नहीं मेरे पास, मैं I'll arrange maybe next time। चेन when it is lifted from the table, हम उसको पकड़ के धीरे धीरे उठा रहे हैं with a constant velocity, the part of the chain which is in motion, क्योंकि बाकी जो टेबल पे वो तो रेस्ट पे which is not in motion, उसको तो हम सिस्टम नहीं लेंगे। विल कंसीडर दिस पार्ट, इस पार्ट का जो मास है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वेलोसिटी हमने जानबूझ के कांस्टेंट रखी है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बाय इट्स ओन। हम पकड़ के सिर्फ उतना ही फोर्स लगाएंगे कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव करे। दो अलग अलग तरह के फोर्स है, एक वेट की वजह से है और दूसरा है उस सिस्टम के मास को चेंज होने की वजह से। The mass is increasing with time because more, थोड़ा सा ही हो रहा है, बिल्कुल सही। हाँ वो तो सेम ही है हर टाइम पे, लैम्डा कांस्टेंट वी कांस्टेंट। वो चाहे यहाँ डिफरेंशिएट करो, चाहे यहाँ डिफरेंशिएट करो, चाहे यहाँ डिफरेंशिएट करो, बिकॉज वी इज कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट नहीं है। तुम ये तो हम टाइम टी पे फोर्स निकाले ना यार, तो उसी टाइम पे देखेंगे। एक इंस्टेंट फिर से डाउट ये है, हमने डीएम बाई डी में एम ये वाला क्यों लिया? क्योंकि हम उसी टाइम का फोर्स निकाल रहे हैं। डीएम बाई डी है मास पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना मास सिस्टम में आएगा। What is the mass that is added into the chain per unit time? That is dm by dt। So कैसे कैलकुलेट कर लिया? मास लेंथ के टर्म्स में लिखी, लेंथ इज y एंड यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, यूनिटरी मेथड। 1 मीटर का मास लैम्डा, y मीटर का मास लैम्डा y। लैम्डा y पहले से है, बट वो ऐड किससे हो, किस ऐड कितना हो रहा है वो तो इसी से पता पड़ेगा ना। dm by dt इसका मास है m, वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन।
dm by dt, ठीक है? ओके, चलो कोई बात नहीं, leave it. Okay, we will do an exclusive class at the last of this chapter on the variable mass system. तब हम इसको और तरह से कुछ करेंगे. We'll calculate the force on the table, we'll calculate force on the chain. अभी के लिए इसको एक स्टार मार्क करके बॉक्स में बंद करके छोड़ दो. अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आया, तब तो अच्छी बात है. Yes. Next is Newton's third law. Newton's third law says to every action there is equal and opposite reaction, जो कि बहुत ही obvious एंड कॉमन सा लॉ है. दीवार पे हाथ मारोगे तो आपको भी हाथ में इतनी लगेगी जितनी की दीवार को. डैमेज दोनों का अलग अलग होगा because of the strength of material. Newton's third law, but बहुत सारी किताबों में including this SL Arora also, it is very wrongly explained. So इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में the third law discussion, जब हम बात करते हैं एक्शन और रिएक्शन पेयर की, what are the properties of Newton's third law, action reaction? Govind, what is the statement of Newton's third law? To every action there is equal and opposite reaction. But ये Yes, थोड़ा sir. अधूरा सा है. This is like slightly incomplete. हम इसको ऐसे लिखेंगे, if force is applied on A by B, there will Sir, be if force is applied by A on B, then equal force applied by B on A. in opposite direction, right? Yes, ठीक sir. है. तो इससे जो कंक्लूजन है वो क्या है? एक्शन अगर लग रहा है A पे, force on A by B is action, then force on B by A is reaction. अगर एक्शन A के ऊपर है तो रिएक्शन लगेगा B के ऊपर. एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट स्टार मार्क करके लिखते जाओ कि हम सारे पॉइंट्स को गलत प्रूफ करेंगे इन वन ऑफ द एग्जांपल और फ्यू मोर एग्जांपल्स. फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी रादर, न्यूटन्स थर्ड लॉ. हमने कुछ सेकंड लॉ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे. लाइकवाइज फॉर द थर्ड लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द फोर्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. देखो लिखना है थर्ड लॉ का पहला पॉइंट. It is applicable for all the type of forces irrespective of its nature. इसका क्या मतलब हुआ? Irrespective of its nature, not shape. It is applicable for all forces irrespective of its nature. कितने तरह के forces होते हैं? What are the type of nature of forces? 4. कौन से थे? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर. तो कोई भी फोर्स हो, इवन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा. चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, ऑलवेज देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सेकंड, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. पॉइंट बाय पॉइंट लिखते दो, देन वी विल सी दैट example given in most of the book how it is wrong. Action and reaction pair acts on different bodies. Third, action and reaction pair can never cancel each other. Can never cancel each other. Why not? Because they are acting on different bodies. अगर एक ही बॉडी पे हमेशा एक्शन रिएक्शन लगेगा तो नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो एंड नो मोशन वुड हैव बीन पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट, next is, it is an instantaneous
It is an instantaneous process. It is an instantaneous process. The reaction comes at the same instant when action is applied. कोई भी बीच में time lag नहीं होगा. There won't be any time lag. There won't be any delay between the action and reaction. The reaction comes at the same instant when action is applied. ठीक है, दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होगा. जैसे एक्शन, अगर एक्शन खत्म तो रिएक्शन खत्म. राइट, एक्शन है तो रिएक्शन है. If action is gone, then reaction is gone. So let's take one very practical example. एक कोई बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है अर्थ पे. It is block of mass m kept on the earth, on the table, on the surface, anywhere. इसमें फोर्स, एक तो वेट लग रहा होगा mg. किसकी वजह से लगता है वो? अर्थ. मतलब ग्रेविटेशन तो एक जनरल टर्म हो गया. मून का भी ग्रेविटेशन है, सन का भी है. इट इज अप्लाइड बाय द अर्थ mg. फिर भी ये अर्थ में नहीं जा रहा, मतलब इट्स नॉट ब्रेकिंग द सरफेस एंड गोइंग इनसाइड, क्योंकि एक अपोजिट फोर्स लग रहा है. किसने लगाया वो? अर्थ ने लगाया. ओके, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन. वी विल सी इन दिस चैप्टर. अगर नहीं क्लियर है तो mg is the weight and is called normal reaction. Are they action reaction pair? Are they action reaction pair? Yes. Action reaction तो भी कैंसिल कर रहा है, तभी तो रुका हुआ है वो. हाँ, नहीं करते, ये बोल रहा हूँ मैं. I will quote the SL Arora in this first and then I'll see. Consider a book of weight W resting on a table. The book exerts a downward force, bracket में लिखा हुआ है action, equal to on the table equal to own weight. According to Newton's third law, the table also exerts an equal upward force. In this case, it is written as R, and it is then written as R is equal to minus of W. Table से जो reaction मिल रही है, according to SL Arora, it is action reaction pair, which is total nonsense. Which is total nonsense. गलत है वो. क्यों? क्योंकि ये जो action है, ये किसने लगाया? Earth. This is, ये सारे points को one by one we will see. This is action of Earth on the block by the Earth. This force is on the block by the Earth. अगर हम इस तरह के लैंग्वेज में लिखें तो एक्शन किसने किया? Heat. What did the action? Earth. रिएक्शन किस पे लगना चाहिए? ब्लॉक पे तो एक्शन नहीं है यार. On the block by the Earth, on A by B is action. So reaction is, जिसने पहला एक्शन किया, रिएक्शन इस पे लगेगा. So reaction will be on Earth. जितने फोर्स से अर्थ ने ब्लॉक को नीचे पुल किया है, उतने ही फोर्स से इस ब्लॉक ने अर्थ को पुल किया है. दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ. राइट. ये क्लास 9th की बुक में गलत लिखा था लखीर सिंह में, और अनफॉर्चुनेटली 11th तक भी बड़े नहीं हो पाए लोग. दिस इज रॉन्ग इन द SL Arora आल्सो. एक्शन एंड रिएक्शन क्या लिखा था हमने? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? प्रॉपर्टी में एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये तो दोनों सेम बॉडी पे लग रहे हैं, वही खत्म हो गया. दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट एक्शन रिएक्शन पेयर. राइट. सेकंड क्या लिखा है? दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर. यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं ये अर्थ में नहीं जा रहा है, बिकॉज दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, दे कैंसिल आउट ईच अदर. That's why block is stationary, is kept on the table. Third क्या है? It is an instantaneous process. यानी कि जैसे नॉर्मल रिएक्शन है. अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसका काउंटर आर्गुमेंट, सपोज हमने इसी ब्लॉक को हवा में फेंक दिया. The block is in the air.
not on the table, it is suppose freely falling. mg होगा, वेट तो हमेशा ही होगा चाहे सरफेस पे हो या ना हो. नॉर्मल रिएक्शन होगा. विल देयर बी एनी रिएक्शन? नहीं. क्यों? रिएक्शन कौन लगाता है? सरफेस. इट हैज नो कांटेक्ट विद द सरफेस. एक्शन है बट रिएक्शन गैप हो गया, ऐसा हो नहीं सकता. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है. इफ देयर इज एक्शन देयर हैज टू बी अ रिएक्शन. mg का रिएक्शन n तो नहीं है, ये समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन चलो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी. mg किसने लगाया? अर्थ ने ऑन द ब्लॉक. हु अप्लाइड दिस नॉर्मल रिएक्शन? सरफेस. ब्लॉक के ऊपर किसने लगाया? इस सरफेस ने. ये फोर्स किसका है? ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस. और ये सरफेस की हार्डनेस पे, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है. टेबल पे हमने कोई 1000 kg का ब्लॉक रख दिया तो टेबल का सरफेस टूट जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स. समझ गए? नहीं. अभी 10 kg का कोई बुक रखी हुई है किसी स्टेशनरी, रखा हुआ है रेस्ट में, पढ़ाते जाओ उसका वेट वेट वेट. एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट will not be able to balance by the normal reaction, then the table surface will break. क्योंकि फिर mg n के इक्वल नहीं हुआ. So that is also not satisfying the condition. Action and reaction pair must be always equal. लेकिन जितना फोर्स यहाँ लग रहा है अर्थ के सेंटर में उतना ही रहेगा, irrespective of कि उसका मास कितना बड़ा हो. करेक्ट? n and mg are not action reaction pair. ये बुक में गलत लिखा है. ये है एक्शन, किसने लगाया? सरफेस ने लगाया ब्लॉक के ऊपर. तो रिएक्शन कहाँ लगेगा? सरफेस में लगेगा. There will be equal and opposite reaction. This is on the surface by the block. हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स तभी होते हैं जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट हो. टू सरफेसेस आर प्रेसिंग ईच अदर, तो एक अपोजिट फोर्स आता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. इसने प्रेस क्यों किया? अपने वेट से. Because of when it presses the surface, surface exert an opposite force to counterbalance it. वो जरूरी नहीं है कि वो उसको हमेशा बैलेंस कर ले. उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. n लग रहा है. सरफेस गर्मी से कोई लेना देना ही नहीं है. सरफेस पे n लग रहा है. n क्या है? इस एक्शन का रिएक्शन. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो mg के इक्वल है. फोर्स कितना लगाया सरफेस पे? mg के इक्वल लगा, लेकिन mg नहीं लगा. mg लगा इसके सेंटर पे. बिकॉज ऑफ वेट इसके सरफेस ने नीचे वाले के सरफेस को प्रेस किया. कितने फोर्स से प्रेस किया? नॉर्मल रिएक्शन से. सिंस दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी, सो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, इसलिए उसके बराबर फोर्स लग रहा है नीचे. बट इट इज नॉट नेसेसरी. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है एंड दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर. बट n and mg कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन पेयर, बिकॉज ना तो वो एक बॉडी पे लग रहा है और ना ही वो हमेशा होते हैं. दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी. व्हेन देयर इज एक्शन देयर मस्ट बी रिएक्शन. एक्शन तो अभी भी है जब ये हवा में, देन आल्सो देयर इज अ ग्रेविटी, बट देयर इज नो रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन mg से बड़ा भी हो सकता है. सपोज दिस सरफेस इज द सरफेस ऑफ अ लिफ्ट. लिफ्ट में, और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है. ऊपर n, नीचे mg. दिस इज द लिफ्ट सरफेस. या टेबल को लिफ्ट में रख दो जाके. जिस टेबल पे बुक रखी हुई थी, टेक दैट टेबल एंड पुट इनसाइड द लिफ्ट. वी ऊपर जा रही है, so there must be a net force in upward direction. By using the Newton's second law, net force should be mass into acceleration, right? उस पे ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? n. नीचे लग रहा है mg, और तो कुछ लगाया नहीं. So net upward force हो गया n minus mg, and that should be equal to ma. n की वैल्यू आ गई mg plus ma के इक्वल. तो इस सिचुएशन में तो n mg से बड़ा हो गया in accelerating lift. अगर ये एक्शन रिएक्शन करे तो हमेशा इक्वल होना चाहिए, irrespective of the situation, चाहे टेबल ऊपर जाए, नीचे जाए, रेस्ट में हो. राइट? n and mg कैन नॉट बी. ये एग्जांपल आ गया समझ?
एक लिफ्ट के अंदर ब्लॉक रखा हुआ, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, हम बाहर से खड़े हुए, मतलब हम बाहर से देख रहे हैं, लिफ्ट के अंदर होंगे तो हमें रेस्टोरेंट दिखेगा, हम बाहर खड़े हुए देख रहे हैं तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन एज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। इसका मास है और ये एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो इसमें फोर्स होगा। फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, n minus mg। So n and mg cannot be action reaction pair। ये गलत लिखा हुआ है बुक में, इसको सही कर लेना। नहीं हो गया क्या? I don't think so। It's 5 मिनट ठीक है। सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। ये एग्जाम्पल क्लियर? एग्जाम्पल क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को प्रेस करता है, तो उनके बीच के चार्जेस के बीच में कुछ रिपल्शन होता है, एंड दैट कॉजेज द नॉर्मल रिएक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एक था नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा होता है फ्रिक्शन। दो तरह के कांटेक्ट फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट की वजह से लगते हैं। जैसे कांटेक्ट लूज होगा वैसे नॉर्मल रिएक्शन खत्म, फ्रिक्शन खत्म। नॉर्मल रिएक्शन जीरो है बट ग्रेविटी जीरो नहीं हो रही, विच इज अनदर प्रूफ दैट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पे। ठीक है, चलो हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सम थ्योरेटिकल एग्जांपल अभी देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनदर एप्लीकेशन। व्हाइल वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड विद आवर फीट स्लाइटली स्लैंटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलने के लिए हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं बट किसी एंगल पे। व्हाई एट सर्टेन एंगल? क्योंकि अगर हमने वर्टिकली पुश किया नीचे की तरफ, नहीं चलेंगे। नीचे प्रेस करोगे तो नहीं चल सकते। व्हाई? बिकॉज वी रिक्वायर अ रिएक्शन। हमें रिएक्शन चाहिए किससे? हमने ग्राउंड को पीछे पुश किया, ठीक। जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, फ्रिक्शन किधर लगता है? इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? जिस पॉइंट पर मोशन है, हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड किधर पुश कर रहे हैं? पीछे की तरफ, किसी एंगल से। इस पॉइंट की टेंडेंसी किधर है? पीछे जाने की। फ्रिक्शन लगता है आगे, जो फ्रिक्शन में पड़ेंगे अभी, और इसी फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। In this case, friction is not opposing the motion fact, friction is providing the motion or generating the motion। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम जैसे चलने की कोशिश करेंगे, स्लिप करके वहीं गिरेंगे बार बार। We will not be able to move, right? अब हमें ये फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमने ग्राउंड को प्रेस किया पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, इसलिए there will be a reaction force in opposite direction। उस रिएक्शन के दो कंपोनेंट, हमने ग्राउंड को पुश किया किसी एंगल पे, सीधे करेंगे कुछ नहीं होना है, राइट। हमने इस एंगल पे क्यों प्रेस किया? क्योंकि इतना ही हमें अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा। उस रिएक्शन का ही एक कंपोनेंट है फ्रिक्शन, राइट। और जो दूसरा कंपोनेंट है आर कॉस थीटा, वो हमारे वेट को संभालेगा, एंड दिस आर साइन थीटा विच इज नथिंग बट फ्रिक्शन, जो कि हमें आगे मोशन प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए फ्रिक्शन हटा देते हैं। You will see, हम ग्राउंड को किसी एंगल पे पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, सो दैट हमारे पास जो फोर्स मिलेगा इक्वल एंड अपोजिट ऑन अस। हम पीछे प्रेस कर रहे हैं, डायरेक्शन आगे की तरफ। इसके दो कंपोनेंट, वन कंपोनेंट विल प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, अनदर फोर्स वर्टिकल वाला हमारे वेट को बैलेंस करेगा, ठीक। स्विम करने के लिए पानी को पीछे करना होता है, क्यों? ताकि आगे की तरफ हमें फोर्स मिले। अगर स्विम नहीं करना है, सिर्फ फ्लोट करना है, तो हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती। फ्लोट कर लेते हैं बिना हाथ पैर चलाए स्विमिंग में। सर वो फ्लोट नीचे करते वाला आर कॉस थीटा नहीं होना चाहिए था, या फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? हाँ सही कह रहे हो बेटा, वो मैंने गलत लिख दिया। ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। थैंक यू। यस, आर कॉस थीटा। ये फोर्स लगाया हमने ग्राउंड पे, और ये लगाया ग्राउंड ने हमारे ऊपर, जिसकी वजह से, सो इसी को बोलते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो थे, एक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स।
we will see in this chapter only. हाँ, तो हम बात कर रहे हैं स्विम करने में हमें वाटर को पीछे बैकवर्ड पुश करना पड़ता है, वो स्विम करने के लिए आपको आगे मूव करना है। तो इफ यू हैव टू जस्ट फ्लोट तो ऐसे ही पड़े रहो, उसके लिए सीखना पड़ता है ना, दैट इज द रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर। लॉन स्प्रिंकलर में पानी बाहर निकलता है, वो पीछे अपने आप रोटेट करता है ताकि वाटर हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दैट इज आल्सो एक्शन रिएक्शन पेयर। रॉकेट प्रोपल्शन इज एक्शन रिएक्शन पेयर। वो जो घास पानी डालते हैं ना, स्कूल में देखा होगा, पानी निकलता है तो पीछे रोटेट होता है, उसको घुमाने के लिए कुछ लगा नहीं रहता, देयर इज नो मोटर इन इट। वही बता रहा हूँ, ऐसे कुछ दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर, कई सारे ऐसे टाइप होते हैं। आगे से पानी निकलेगा, ये पीछे की तरफ, इधर वाटर निकलता है, पीछे की तरफ फोर्स, इधर वाटर निकल रहा है, पीछे की तरफ फोर्स। समझ गए? कोई घुमाता नहीं है, नीचे से पानी आता है इधर पाइप में, और वो पानी चार तरफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है। And when it comes out, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स, इधर से पानी बाहर निकलता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स। दिस V इज द वाटर कमिंग आउट, इधर पानी बाहर निकलता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निकालता है, इधर निकलता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। समझ गए? So because of the water coming out, it exert an opposite force, और उस फोर्स की वजह से ये रोटेट होने लग जाता है। ओके, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दी हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूल में पूछते रहते हैं एनसीईआरटी में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द नेक्स्ट क्लास। लॉज ऑफ मोशन के पहले क्वेश्चन करेंगे इन द फ्राइडे क्लास। I'll send the DPP and then tomorrow, no, Friday we will discuss. और भी जिसके स्कूल में लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी आ रहा है, लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी आ रहा है, you can have a class demo, doubt class, मुझे मैसेज कर देना। I am taking class every day 1 or 2 for the laws of motion and work energy. You can ask if you have any doubt. Okay, thank you.